Why 90% of the business owners are losing the sale in one-to-one calls? हर बिजनेस का अपना अपना पेन होता है, आप चाहे कोच हो, कंसल्टेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या डायरेक्ट सेलर्स हो. If you're watching this particular video, this 100% this video will be the game changer for you. हर किसी का बिजनेस का अपना अपना पेन होता है. किसी को लीड्स की प्रॉब्लम है, दे आर गुड इन सेल्स. किसी के पास सेल्स टीम इतनी प्रोफेशनल होती है, दे आर नॉट गुड इन मार्केटिंग. किसी का मार्केटिंग सिस्टम इतना टाइट होता है, दे डोंट नो व्हाट फनल टू डिसाइड इट आउट. किसी का फनल भी सही है, सेल्स भी अच्छा है, बट प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉब्लम है. एवरी बिजनेस इज हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट? Today we will talk about the fundamental why the business owners are losing the sale, especially if you are in like financial product, one-on-one selling, where human to human sellings are there. Especially we will be talking about those pointers, not e-commerce sales and all. We are talking about human to human sales. Hi, this is Varun Chawla, founder of Autopilot Business Academy and the technology company Autopilot Booster, where we are helping the person just like you to automate the entire process, marketing system, sales system, so that you can not hire maximum employees. You can with the minimum staff, so that the system can work for you and you can only focus on the sales part, right? 80% of the works is automated. So we are teaching in this academy, and with the help of Autopilot boosters, people are just rocking in the market. So yes, let's go to the topic. Today's topic is very sensitive, I would say. Why 90% of the business owners losing the sales? अगर आप कोच हैं, कंसल्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, डायरेक्ट सेलर हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर आपको हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति के साथ डील करना होता है, राइट? यू स्टार्ट डीलिंग विद वन ऑन वन, बट सेल्स इज नॉट is the game of just you can say the product selling या फिर the push market, right? We have to work on these 5 pillars. We have to work on these 5 pillars. और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दिस इज नॉट एनी किताबी नॉलेज. This has not come from any kind of the book. Personally, from my one-on-one experience, from my webinar selling experience, I have put that crisp, right? Why the people are losing the sales. सर लीड बहुत अच्छी आ रही है, क्वालिटी पर्सन सामने बैठा हुआ है, मेरे पास 90% क्वालिटी लीड्स ही मेरे साथ मिलने आ रही है, नॉट लीड्स, क्लाइंट्स ही मिलने आ रहे हैं. उनको प्रॉब्लम है, उनको वही चाहिए जो मैं दे रही हूँ, बट दे गिव मी एक्सक्यूज, राइट? इवन उनके पास पैसा भी है, ये भी दिखाई दे रहा है, बट दिस आदमी को वहां से निकलना है, खिसकना है, तो दे स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूज. वाइफ आने वाली है, पूछ के बताऊंगा. स्पाउस ऑब्जेक्शन, like money objection, they don't have money, but साफ दिखाई दे रहा है that they are living in a good house, everything is fine, and पोटेंशियल क्लाइंट. अब वहां से खिसकना है, आप भले डिजिटल काम कर रहे हो, भले वन ऑन वन फिजिकली काम कर रहे हो, बट दे हैव टू गिव सम एक्सक्यूज. तो इस फंडामेंटल को समझते हैं. इफ यू जस्ट चेंज द फ्रेमवर्क, ऑटोमेटिकली योर सेल्स रेशियो विल बी गेटिंग शिफ्टेड, राइट? सो फर्स्ट पार्ट इज दैट इज साइकोलॉजी. व्हेन यू गो टू द सेल्स, देयर शुड बी अ साइकोलॉजी. योर गोल ऑफ सेल्स मीटिंग इज नॉट कि आपको पैसा लेके आना है सिर्फ. The goal of sales meeting is to position yourself as a giver. Don't go as a solution giver, right? Don't go as a, you can say, just with the salesy mindset, right? You have to position yourself that you are presenting in front of the prospect just to help that particular person to take the decision, right? Become a helper. That is a problem finder. Top 1% जो भी sales person है, they are not good in giving the solution, they are not good in solving the problem, they are good in finding the problem. There are two types of the market: प्रॉब्लम अवेयर मार्केट, प्रॉब्लम अनअवेयर मार्केट. कई बार होता है, लोगों को लगता है मुझे लीड जनरेशन है. जब वो मेरे साथ वन ऑन वन बैठते हैं, जब हम उनका ऑडिट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां से निकल के आता है द रियल प्रॉब्लम इज पोजिशनिंग इन द मार्केट. अगर पोजिशन ही सही नहीं है तो लीड कैसे आ जाएगी? आए तो वो इसलिए थे, रूट कॉज निकला पोजिशनिंग. तो यू हैव टू बी फाइंड आउट. इफ यू आर इन अ वेट लॉस मार्केट, इफ यू आर इन रियल एस्टेट मार्केट, if you're a real estate agent, if you are someone insurance seller, if you are a coach, life coach, parenting coach, you have to find out the real problem, not just to solve the problem. Might be उन्होंने कुछ आपका ad देखा है, they are giving you that I have this problem, but you have to ask the questions, right? You have to drill down the prospect, you have to note down the prospect, right? Crisscross questions, right? So that you have to go very deep. आपको समुंदर के अंदर उतरना है. That you have to set this psychology, what the pointers I'm going to share up, right? Usually we are sharing this with the paid members, but now we are giving so much of the content in this particular channel. If you haven't subscribed it out, please do subscribe. This will be a game changer knowledge for you.
Top 1% sales closer are not good in selling. They are good in extracting the right problem from the prospect. वो उनके अंदर से वो चीज निकलवा लेते हैं which is a exact problem that person is having, and then you can map your solution with that problem. और वो प्रॉब्लम इतनी होनी, मतलब दैट प्रॉब्लम शुड बी दैट लेवल ऑफ गंभीर कि इफ दैट प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व, व्हाट विल हैपन वीक बाय वीक, इफ दैट पर्सन इज सेविंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुई तो, देन यू विल नॉट टेक द सेल, you will not take the sale, right? You have to create a gap. Set the goal of meeting in first 5 minutes. The goal of meeting should not be, कई बार आपको सिखाया जाता है that you have to be, चिल्ला के बात करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देनी है। मार्केट में बहुत सारी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारी मिलेंगी सेल्स की, हर किसी का सेल्स का एजेंडा अलग है, बट दिस इज द thing that is a top notch which I am saying to you from my personal experience. Goal of the first 5 minutes is, for example, if your meeting should be approx 60 to 90 minutes, then you can simply set the goal that yes, do you have that particular time or not? Position yourself as an authority, right? You have to ask the right questions. Prospect don't have to ask the right question. If the prospect is asking the question, don't say in between that I will not answer. Simply throw back the question. अगर किसी prospect ने in between पहले 5 मिनट में prospect ने start कर दिया क्वेश्चन, then you will not the authority, the prospect will be the authority. एक suspect और prospect में क्या डिफरेंट है, मैं आपको थोड़ा सा, अगर एडवोकेट और सस्पेक्ट के बीच में की बात बताऊं तो एडवोकेट विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द सस्पेक्ट, वो कटघरे में खड़ा होगा, तो योर prospect should be in the कटघड़ा and you are the वकील, you are the advocate, that you have to ask the right question. Right? If you're getting the bulb on, you can write the bulb on in a comment box, right? Set the goal of the meeting in first 5 minutes. That ये call इतनी लंबी चलने वाली, if that person is saying I have only 20 minutes, don't go for the call. In 20 minutes, just check it out, that person's only problem. Just do the discovery, don't pitch the solution. Book another meeting. Book another meeting. This is the process. Break the meeting into 2 parts. फिर आप जल्दी में 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करोगे, दैट इज मनी साइकोलॉजी। वो सिर्फ प्रेशर है आपके ऊपर, यू डोंट हैव टू पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ, राइट? अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेट देयर गार्ड डाउन। गार्ड का मतलब प्रेशर, जो प्रोस्पेक्ट के ऊपर प्रेशर होता है जैसे वो कॉल में आता है कि यार ये पर्सन कुछ बेचेगा, अगर आपने पहले 5 मिनट के अंदर ये बात बता दी कि यार नाउ थिंक अबाउट, मैं आपको ये बात सच्चाई से बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप वेट लॉस का ही सॉल्यूशन बेचते हो और somebody comes from, लेट सपोज घुटने में पेन है कि चलो यार देखते हैं ये वेट लॉस दे रहा है तो घुटने का भी दे देगा। इफ यू रियली डोंट हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन और आपको पहले 20 मिनट में पता चल गया है कि आई कैन नॉट हेल्प दिस गाय, डू यू रियली थिंक आप फिर भी अपना वेट लॉस का सॉल्यूशन उसको दोगे? वो पर्सन फिट एंड फाइन है, घुटनों का दर्द कुछ और है, शायद उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, and you don't recommend the right thing, you are recommending the only your solution is the only solution, then please this is a false trap. तो अगर आप पहले 5 मिनट में ये सेट कर देते हो कि if I am not having the solution, I will not pitch any false information to you, I can redirect you to the right guy or the right person, is that fine for you? Automatically the pressure release. This is a part of human behavior, right? That is very important. So let their guard down in first 5 minutes, which is very, very, very important, I would say. Control should be in your hand, right? एक छोटी सी चीज, जैसे मैंने एडवोकेट और उनका एग्जांपल दिया, अगर सपोज करो सस्पेक्ट इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द एडवोकेट, व्हाट विल हैपन? Judge is watching from their chair and the control is in the hand of that particular suspect. The control आपको अपने पास रखना है. You ask the question, the prospect has to answer and you remain silent. Silence is the key, right? Silence is the key. And seventh point is very important. That is, don't show the fake excitement. ये स्टार्टिंग की साइकोलॉजी ही है जो हमें ऑटोमेटिकली फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर बिठानी है, एंड दैट विल, कुछ लोग सिखाते हैं रेपो बिल्ड करो, अपने बारे में बताओ, हम ये हैं, हमने तूफान मचाया है, हमने आग लगाई हुई है बाजार के अंदर, हमने इतने लोगों को हेल्प की है। वो आपको, आपसे बात करके पता चल जाएगा कि इस पर्सन में कितना दम है। आपकी अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से बनाना है कि दैट पर्सन विल टॉक टू यू ऑटोमेटिकली। आपके पास टेस्टिमनीज कम है, चलेगा, आपके पास फॉलोअर्स कम है, चलेगा, सब्सक्राइबर्स कम है, चलेगा, बट इफ यू हैव द राइट माइंडसेट एंड दिस राइट साइकोलॉजी, यू आर नॉट अ पुश सेलर, यू आर अ पुल
pull marketer, I would say pull seller, then automatically the person will attract with you. The second, if your solution can solve their that problem जो आपने एक्सट्रैक्ट किए, ना कि सोच के तो वेट लॉस आया था, या फॉर एग्जाम्पल इफ दैट पर्सन इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम, वहां पे रूट कोज पता चलता है, या एसिडिटी और ब्लॉटिंग, वहां से आपको पता चलता है कि रूट कोज तो वेट लॉस है, देन यू कैन पिच, यू कैन रीडायरेक्ट द एंगल टू द वेट लॉस, दैट वर्क्स। यार वेट की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जब ये प्रॉब्लम आती है तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को उठ उठ के ब्लॉटिंग हुई है, वॉमिट हुई है, या कुछ इस तरीके का बिहेवियर हुआ है, ओके। तो कब कब कई बार ऐसा लगा था कि लास्ट टाइम आपने अपना वेट इतना कब मेंटेन किया था, ओह तो इतना मेंटेन आपने तब किया था, तब कैसा लग रहा था एसिडिटी ब्लॉटिंग, ओके नाउ मैप द एंगल कि जब आपने किया था। अब वहां पे ये आ जाएगी कि यार मैंने जिम जाके किया था, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट द एंगल टू द वेट लॉस, क्योंकि आपको पता चल चुका है इसका रूट कॉज वेट लॉस है, देन यू कैन सॉल्व द वेट प्रॉब्लम, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस को लेके ही एड चलाना है, नहीं। यू कैन पोजिशन योर सेल्फ, आप अपने आप को जैसा पोजीशन करते हो, देखो लीड जनरेशन का प्रोसेस अलग है, दैट इज अ मार्केटिंग मैसेज आपका कैसा है वैसे लोग आपसे मिलने आएंगे। अगर आपका मार्केटिंग मैसेज कचरा अधूरा है तो फिर इफ आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व हाई टिकट इकोसिस्टम, आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड दैट हाई टिकट इकोसिस्टम, तो दैट पर्सन कैन कम टू मी। If I can say that if you want to earn extra income, if you are a student above 18 years, then automatically student market come to me, there is a money objection। तो भैया अगर सही पर्सन को टारगेट कर रहे हो, लेट सपोज इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, या इफ यू आर अ कोच हेल्पिंग द बिजनेस ओनर्स टू ग्रो देयर कैश फ्लो, टू ग्रो देयर प्रॉफिट्स, वट एवर बी द थिंग, अगर आप किसी बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हो, तो आपका मार्केटिंग मैसेज क्या है कि दोज बिजनेसेस who are earning more than, like whose revenue is more than 50 lakh rupees, but they are not having the marketing system, sales system, the team is depending on them, तो ऑटोमेटिकली आप उस प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो, और आपने एकदम अपना मार्केटिंग मैसेज शार्प किया कि आई एम टारगेटिंग ओनली 50 lakhs एंड अबव, तो मेटा विल प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, राइट। उसके बाद आती है ये साइकोलॉजी एंड ऑल दैट, हाउ यू हैव टू बी फोकस्ड। प्लीज आई एम नॉट टीचिंग दैट थिंग कि आपको फेक एक्साइटमेंट के साथ पहन के बैठना है, कोट पहन के बैठना है, यू हैव टू लुक लाइक दिस, बढ़िया सा चश्मा लगा के, नथिंग, एवरीथिंग इज फेक। डोंट बी फेक, आई वुड से बी ओरिजिनल हु यू आर। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। यू हैव टू यूज द राइट टोनालिटी, राइट। टोनालिटी के अंदर क्या होता है, प्लेफुल टोन, इफ समथिंग शोज, if prospect is having some kind of achievement, apply playful cheerful tone, वो cheer आपके चेहरे पे जाएगा, तो that gives the energy to the prospect। let's suppose if the prospect is having kind of, उसका कुछ लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल मेटा के अंदर कोई लॉस हो चुका है, या फिर कहीं पे भी लॉस हो चुका है, कुछ ऐसी बात उसने बताई आपको, तो यू कैन सिंपली अप्लाई द कंसर्न टोन, ओ माय गॉड, अप्लाई द कंसर्न टोन, दैट यू आर कंसर्निंग टूवर्ड्स द प्रोस्पेक्ट। एक इंश्योरेंस का एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज आज आप मान लो कोई बिजनेस ओनर बैठा है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेट सपोज राहुल, यू हैव दिस ग्रेट एम्पायर, आई वुड से, तो इसकी डिपेंडेंसीज, इसका ईएमआई, इसका लोन कितना चल रहा है आज की डेट में, एंड हु आर द डिपेंडेंट वंस ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है, तो वो बताएगा कि स्पाउस डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, बच्चे डिपेंडेंट है, ओके। कोई और बिजनेस पार्टनर है अभी जो इन केस कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो यू बोथ, ना ना आई एम द ओनली बिजनेस ऑन, तो कितनी ईएमआई जाती है महीने की, कितना, ओके इतना रेवेन्यू हो पा रहा है, हाँ रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया है बिजनेस के अंदर, तो भगवान की कृपा है सब कुछ, ओके। अब यहाँ पे आपने चेक कर लिया है कि उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको अपना इंश्योरेंस का व्हीकल क्लियर करना है, तो यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द कंसर्न टोन, राहुल कैन यू जस्ट टेल मी वन थिंग, लाइक ये सुन के मुझे कुछ एक चीज ऐसी लग रही है जो सोचने पे मजबूर कर रही है, that by chance, because everybody, like today you are at 40, right? According to you, like I know that you are doing health checkup, आप अपना फुल बॉडी चेकअप करा रहे हो, ये करवा रहे हो, बट रिसेंटली इन माय फैमिली, my cousin brother has just passed away at
at the age of 42, an entire business pressure shifts on my bhavi. This is true story, my life, my family story, इसलिए मैं आज यहाँ पे रख रहा हूँ आपके सामने. आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई स्टोरी होगी, राइट? Apply that concerned on. I am very much concerned, Rahul, that by chance, like if this happened, so what do you feel? Uh, is this like anybody have you? Do you manage this backup? Like, what do you plan? That yes, this particular pressure can be easily managed by this particular thing. Now Rahul getting opened up, mind parachute gets opened up. Now he start giving the pressure on the mind. What we will do? Now that person is saying that यार नहीं ये चीज तो नहीं है, प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट टू डू. 90% लोग क्या करता है कि आज मैं आपके लिए इंश्योरेंस लेके आया हूँ, LIC लेके आऊँ, ये लेके आऊँ, वो लेके आऊँ. एवरीथिंग इज बुलशिट. इफ दैट प्रोस्पेक्ट इज नॉट हैविंग द रिक्वायरमेंट, व्हाई टू गो देयर? Either problem aware, either problem unaware. This person is not having the problem, but they don't know they have the problem. कभी सोचा नहीं है. तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है. एक तो होती है जो सीधी सीधी दिख रही है, एक होती है जो अंदर होती है. कई बार आपका कुछ सवाल ऐसा होता है, वो प्रॉब्लम जाग जाती है और वो इतनी गंभीर होती है कि वो दिन रात सोने नहीं देती है. इफ दैट टाइप ऑफ द हॉट थिंग, क्योंकि लाइफ इज टोटली अनसर्टन, किसी को नहीं पता अगला सेकंड क्या होगा. दैट्स वाई आपने इंश्योरेंस की एड्स देखी होगी, डायरेक्टली हिट ऑन दिस पॉइंट. बट द रियलिटी इज कि वो बंदा बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस के एक्सपेंसेस आपने सारे लिखे हैं कि ये किस पे पास ऑन होंगे. 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की EMI आती है, किस पे जाएगी? ऑब्वियस मेरी वाइफ पे जाने वाली है. आपकी वाइफ इतनी कैपेबल है आप ही की तरह इस तरीके का बिजनेस? नहीं नहीं यार, उसको तो बिजनेस का ABCD नहीं पता है. योर व्हीकल इज क्लियर, नो प्रॉब्लम, लेट्स मीट इट टुमारो, आई कैन शो यू समथिंग. You have to qualify your vehicle, right? Now come to the point, curious tone. If you're curious, like you want to, like किसी ने कुछ ऐसा सवाल बताया कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल राहुल की बात ही कर रहे हैं कि राहुल ने मुझे बताया कि मेरे बिजनेस में ये चीजें चलती हैं और यहाँ यहाँ से. आई एम वेरी मच क्यूरियस, लाइक टू नो मोर अबाउट दिस, टू नो मोर अबाउट दिस, ताकि दैट पर्सन इज मोर ओपन अप. इफ दैट प्रोस्पेक्ट इज मोर ओपन अप, ऑटोमेटिकली यू विल एक्सट्रैक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि आपको फॉल्स चीज नहीं बेचनी. इफ राहुल डोंट रिक्वायर दैट, डोंट सेल दैट, राइट? डोंट सेल दैट. नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज कंफ्यूज्ड ऑन. कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट आपको बहुत कम कम बताता होता है, कम कम बोलने वाले प्रोस्पेक्ट्स होते हैं. साउंड कंफ्यूज. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि यार मैं इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में भी जा चुका हूं. डिप्रेशन, डिप्रेशन. When you sound confused, तो prospect start thinking in their subconscious mind कि यार इसको समझ में नहीं आया, मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, राइट? एंड सी दीज टोन्स, ये वो टोन्स हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में सिर्फ सेल्स में प्रैक्टिस नहीं करनी. आई हैव यूज दीज टोन्स इन माई फैमिली ऑल्सो. So be a good human being in a communication form of things, right? Don't use wrong tonality on the daily basis, and that will reflect on your business. अगर जो tonality आप बाहर यूज करते हो, that will reflect on your business. Mark my word. That's why you're losing the sale. Asking the right question is the biggest game, but उसको पूछना कैसे है, वो obvious, वो अंदाज तभी निकल पाएगा if you're सेल्स में आके आप एक जस्ट एक्टिंग वाला फॉर्मेट अगर शुरू हो जाता है कि ऑब्वियस ठीक है, इफ यू आर नॉट मास्टर इन दैट, यू हैव टू बी मास्टर, राइट? प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बट सेम टाइप ऑफ द टोन यू हैव टू यूज विद योर वाइफ, विद योर चिल्ड्रन. तो दैट टोन आपने देखा होगा, एक टॉप 1% जो परफॉर्मर्स होते हैं, सेल्स परफॉर्मर्स, देयर टोनालिटी इज टोटली डिफरेंट. दैट टोनालिटी इज टोटली डिफरेंट, आई वुड से, राइट? दैट इज द व्हाट द थिंग्स. प्री-क्वालिफाइड द क्लाइंट बिफोर शोइंग द सॉल्यूशन. जो मैंने आज बात करी, जैसे राहुल का एग्जांपल दिया, आस्किंग द क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं दिखाना है. यू हैव टू प्री-क्वालिफाइड. इफ दैट पर्सन इज रेडी विद द बजट, दैट पर्सन इज हैविंग द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. लोगों को लगता है कि पीपल स्टार्ट ऑफेंडिंग. नहीं, यू हैव टू क्रिएट अ गैप. अब जैसे राहुल का एग्जांपल था कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वाइफ पे आएगी, वाइफ कैपेबल नहीं है, ओके. डे बाय डे दैट पर्सन इज हैविंग इन द डेंजर जोन. नाउ आपने उस पर्सन को एक ग्रीन जोन से लाके रेड जोन में रख दिया है. आसपास रेड जोन है, हर दिन खतरे की घंटी है, हर दिन खतरे की घंटी है कि वाइफ कैसे संभालेगी ये सारी चीजें. नाउ दैट पर्सन इज प्री क्वालिफाइड, देन योर व्हीकल इज क्लियर. नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको सोल्यूशन प्रेजेंट कैसे करता है. वो मेरा 5th पॉइंट है बाय द वे. बिकॉज कहां पे लोग
मैं ये नहीं कह रहा, आई एम ऑल्सो डूइंग दीज मिस्टेक्स, दीज, और आज भी होती है। आई वॉच माई सेल्स कॉल अगेन एंड अगेन। If I lose the sale, if I did the sale, I watch that. If I lose the sale, I watch that, right? Why? Because I can create a metrics कि यार कहाँ पे क्या गलती हुई थी. This is the biggest, I would say, biggest skill ever. मतलब AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब खत्म हो जाए, this skill will never ever stop, because AI cannot do sale. AI can do automation, AI can do everything, but AI cannot do sales. This is a human intervention. This is the only skill जो बचेगी मार्केट में, बाकी सब AI लेके जा सकता है. Pre-qualify the clients before showing the solutions. Fourth point is a verbal pausing. लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा, क्लाइंट ने जवाब दिया, क्लाइंट थोड़ा सा चुप हुआ, पर्सन थोड़ा सा चुप हुआ, दे स्टार्ट आस्किंग द सेकंड क्वेश्चन. टेक अ पॉज ऑफ 3 to 4 seconds. If you ask the question, prospect answer, if you pause for the 3 to 4 seconds, जो उसने आंसर दिया है वो उसके माइंड में गैप बनाने में कम से कम 4 से 5 सेकंड लेगा. And that is a part of verbal pausing. If you're not taking the verbal pause, this is also a reason to lose the sale. Verbal pausing, ठहराव. Just be silent. Watch it out for 4 to 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds. Not just to watch it out, to digest, to make your prospect to digest that particular answer. फॉर एग्जाम्पल वो बहुत डेंजर है, जैसे मैंने राहुल से सवाल पूछा, बहुत कड़क है, बट उसका सही टोनालिटी क्या हो गया, अगर यही में रॉन्ग टोनालिटी, यार अगर ये सब खत्म हो गया तो कैसे संभालेगी तेरी बीवी. दिस इज वेरी रॉन्ग टोनालिटी, वेरी फॉल्स टोनालिटी. एक सिर्फ टोनालिटी बदलने से जज्बात बदल जाते हैं, रिजल्ट बदल जाता है, आंसर बदल जाता है. हाउ टू यूज द राइट टोनालिटी किसी ने आज तक सिखाया ही नहीं है. राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्बल पॉजिंग. I hope verbal pausing, ठहराव, रुकना है. When you ask the question, pause it for 4 to 5 seconds. Just watch it out the prospect. Presentation. This is the fifth point, I would say, and this is the 10% of the game. सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, लोगों को लगता है कि जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है मतलब दे रिलाई 100% ऑन द प्रेजेंटेशन. नो, आई वुड से ऊपर के जितने भी मैंने फोर्थ पार्ट बताए हैं, 85% एटलीस्ट game is this, that is called engagement stage. Engagement stage, this is called engagement stage. AIDA मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हमने पढ़े हैं. फनल का AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. एक्शन का मतलब हम सेल सोच लेते हैं, नहीं. लोग आपसे 1 to 1 आ गए, आपका फनल सक्सेस हो गया है, आपके वेबिनार में आ गए, फनल सक्सेस हो गया, बट आखिरी गेम लोग समझते हैं प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं. नहीं बॉस, ये ऊपर के 4 पार्ट कर रहे हैं, आपका सेल 100%, आई वुड से. मास्टरी करने में कम से कम हो सकता है 250-300 कॉल्स लगे आपको, ज्यादा भी लग सकती है. बट इफ यू आर नॉट, इफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक इन एवरी कॉल, यू विल बी अ सेम पर्सन. प्रेजेंटेशन इज द 10% ऑफ द गेम. यहां तक प्रोस्पेक्ट इज डन, देन 10% ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, just show them the solution. Stop the presentation. How to present that presentation, that is a different story. We will create a different video. But presentation video थोड़ा सा लंबा हो रहा है, but this is very important because so many persons are texting me that सब कुछ बढ़िया हो रहा है, sales are losing. Why? That's why creating video for everybody. Presentation is 10% of the game, but presentation करना कैसे है, जो भी prospect ने आपको answers दिए होंगे वो आपके note down होने चाहिए. लेट सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 स्टेप्स हैं कि पहले लीड जनरेशन, ऑटोमेशन एंड सेल्स एंड ऑल, मार्केटिंग सिस्टम तक सेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस, पोजीशनिंग से लेके सेल्स तक क्या प्रोसेस करना पड़ेगा. आफ्टर दैट ऑनबोर्डिंग एंड ऑल, इकोसिस्टम कैसे बनाना है. तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल इस तरीके से होता है, वो प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन बदल जानी चाहिए. जो उसने आंसर बोला है उसके साथ मैपिंग करनी है आपको. टेलर द सॉल्यूशन विद द प्रोस्पेक्ट आंसर्स, और वो आंसर्स होने चाहिए जो आपने निकलवाए. कई लोग ये सिखाते हैं जिसने 5 बार यस बोल दिया, 7 बार यस बोल दिया, तो वो सवाल ऐसा बोलते हैं जिसका आंसर यस होता है. दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग पैटर्न. यस ठीक है, सबकॉन्शियसली यस यस यस, ओके, बट द थिंग इज, इफ द प्रोस्पेक्ट इज नॉट ओपन अप इमोशनली, जब तक ढक्कन नहीं खुलता है, लोग आते तो हैं, मैं बता रहा हूँ, लीड जनरेशन ये वो फलाना ठिकाना, बट यस व्हेन दे आर नॉट इमोशनली ओपन अप, I cannot show my solution, right? How I cannot show, how I can show the solution?
if I don't know the real problem that I can solve or not, how can I say, you can say, show that the solution? Selling and all is a different part. उसके बाद आता है irresistible offers देना, offer create करना. Offer creation is a separate part. We can make a separate video. But this is a part of presentation, right? 10% of the game. 10% of the game. If you really know the fundamentals, work on these 5 pointers, watch this video again and again. Thank you so much, right? If you watch this video till this, at this particular point, you are the real entrepreneur. Thank you so much. I really personally want to thank you so much. Just hit the comment, bell icon, subscribe so that next series of the sales, next series of the automation, lead generation, marketing systems, gamification, so many things, right? We can at least pop up in your notification on the top, right? जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे. And comment box में बताना what problems you are facing in your business. Thank you so much. Bye bye. Take care.